السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مظاہر مظاہری دلی سے۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم دین تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب شیخ الحدیث، جو شاید پورے پاکستان کے بڑے علماء کے اساتذہ میں ہیں، استادوں میں ہیں۔ پرسوں ان کے صاحبزادے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل صاحب کا جو ہے کچھ غنڈوں نے گولی مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے تھوڑی سی بات یہ کرنی تھی کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں جتنے بھی لوگ جانتے ہیں وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ مظفر نگر کے کسی گاؤں کے تھے۔ میں بھی اپنے ابا سے بھی یہ بات کہہ رہا تھا، یہ ہمارے دادا ہیں، میں اپنے ابا سے بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے تھے، تاکہ اس گاؤں کی بھی کچھ جو ہے نام روشن ہو اور پتہ لگے کتنے بڑے بڑے علماء وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو ہے وہ قصبہ جلال آباد کے پاس ایک گاؤں ہے، قصبہ حسن پور لوہاری۔ جی، قصبہ حسن پور لوہاری کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کے بیر مشہور ہیں، اور وہاں پہ جو سب سے زیادہ بڑے بڑے کبار علماء ہندوستان کے گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، اور جتنے بھی کبار علماء اور بزرگان دین ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ سب کے سب میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے، سارے کے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ تو اور وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جو ہے وہ لوہاری میں رہتے تھے، اتنی بڑی بڑی شخصیت، یہاں تک کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں بیعت و خلافت میں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ بھی ایک الحمدللہ بڑے اولیاء اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دارالعلوم کی تاریخ بھی لکھی جائے تو اس کی پہلی سطر میں بھی ہمارے گاؤں کا نام ہونا چاہیے، قصبہ حسن پور لوہاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دارالعلوم کی تاریخ لکھی جائے گی تو ضرور مولانا قاسم نانوتوی کا نام آئے گا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا، تو ضرور حاجی امداد اللہ کا نام آئے گا، اور حاجی امداد اللہ کا جب نام آئے گا تو وہ جس کے جو ہے جن سے بیعت تھے جنوف کے اندر، وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب لوہاری کے ہی اندر رہتے تھے، تو وہ جھنجانے کے لیکن وہ رہتے لوہاری میں ہی تھے۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں ابھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں۔ دیکھیے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی پرانی باتیں ہو جائیں، ان سے ہمیں کچھ تبرک مل جائے، کچھ ان سے برکت ہمیں مل جائے، کچھ ان کی باتیں پرانے لوگوں سے تو ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ تو یہ ہمارے دادا جان ہیں، ان کا نام اللہ رکھا ہے، یہ ہمارے لوہاری میں ہی وہیں رہتے تھے جہاں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا مکان تھا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا نام تھا قیوم خان، اور وہ قیوم خان شاید ان کے اولاد نہیں ہوئی تھی، ابا جی ہیں؟ نہیں، ان کا اولاد نہیں۔ ہاں، ان کا اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور قیوم خان بٹوارے کے وقت چلے گئے تھے یا بعد میں گئے تھے؟ بٹوارے سے بعد میں گئے تھے، اب گئے زیادہ 40 سال ہوئے۔ ہاں، میں نے بھی یہ سنا۔ 40 سال بھی نہیں ہوئے جی، اچھا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو شیخ الحدیث ہیں، سارے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں اب بس سب ان کے شاگرد ہیں۔ کتنی بڑی خاص بات ہے کہ ہمارے گاؤں کے ایک عالم دین اس قدر اللہ نے انہیں مرتبہ دیا کہ وہ جو ہے سارے پاکستان کے جو ہے استاد الاساتذہ کہا جاتا ہے ان کو، اور شیخ الحدیث گزرے ہیں، اور واقعتاً ان کے علم حدیث کے اندر وہ مقام ہے کہ سارے علماء ان کی جو ہے علم حدیث کے اندر جن کو مہارت تھی سب اس کے قائل ہیں اور مانتے ہیں۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں بتائیں، آپ جب وہ بڑے تھے تو آپ کتنے تھے، وہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے اور کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کیا، کچھ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں بتائیں۔ تو بلکہ قیوم خان تو ان کے آگے پڑھے، جی، جو تھے جلال آباد والے، کیا نام تھا؟ مولانا مسیح اللہ خان صاحب۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب۔ جی، اور ہم پڑھا کرے تھے جب امتحان لینے پہ آیا کرے جی، جی، تھے، جی، اور بھائی سلیم اللہ خان بھی نے بھی لیا جنوں کے 1-2 دفعہ امتحان اچھا، جب یہاں تھے۔ تو سلیم اللہ خان صاحب لوہاری میں کسی مسجد میں امامت کرتے تھے یا ایسے ہی رہتے؟ نہیں، امامت کسی نے نہیں کری۔ اچھا، تو کسی مسجد میں امامت تو بس انہوں نے قیوم خانہ کری، اور پیسہ کچھ نہیں لیا۔ اچھا، اور جب بھائی کچھ ان کو پریشانی ہوئی، جب ان کا گھر والے بھائی جانے لگے سینما دیکھنے، اچھا، تھوڑی سی کھلے مزاج کی تھی، اور سے ہی پتہ لگی، انہوں نے تو پتا نہیں، تو وہ کہنے لگے بھائی ہمیں نمازوں کو کہنے لگا بھائی اب تم امام رکھ لو اپنا۔
अच्छा, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा हाँ, क्योंकि हाँ। मेरी बीवी मेरी अहलिया जो नहीं है, नहीं, उन्होंने वो कहा भी कुछ नहीं, हाँ लेकिन अंदर से ही ये सोच के कि भाई मेरी अहलिया इस लायक नहीं है तो लोग मेरे पे तानो तशनी करेंगे, तो पहले ही हाँ, वहाँ छोड़ हाँ, दी। बस फिर वो- तो ये तो कय्यूम खां की बात हुई। तो सलीमुल्लाह खान साहब हजरत शेखुल हदीस जो थे, क्या आपने उनका कहीं बयान सुना है या किसी तरीके की बातें, उनका चेहरा बचपन में जब आप छोटे थे तो उनका बयान वगैरह सुना है आपने कहीं? हाँ हाँ, उसमें मस्जिद में सुना हमने, उसमें फक्कर सवाली में। फक्कर शाह वाली लोहारी में कोई मस्जिद है? हाँ, मस्जिद। अच्छा, वहाँ अगर इमामत करे थे कय्यूम खां। कय्यूम खां वहाँ हाँ, पे इमामत गोड्डे की करते तरफ है निकल मस्जिद, हैं, जहाँ पे रक्षा वगैरह खड़े होते हैं कादरगढ़ जाने के लिए। अच्छा, वहीं उसी में पढ़ा था। और मौलाना सलीमुल्लाह हजरत शेखुल हदीस ने अगर कुछ पता हो कहाँ कहाँ तालीम हासिल की है बचपन में, या जब वो बड़े भाई थे इतनी पढ़ते? तो हमें वो नहीं थी, हमने भाई वो नहीं पता नहीं करा, यही है कि भाई देवबंद तो पढ़ा है। हाँ पढ़ा उन्होंने। और जलालाबाद में और मसीहुल्लाह खान? जलालाबाद ही पढ़ा उन्होंने। क्योंकि मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जो थे वो हजरत मौलाना रशीद थानवी के शागिर्दों में है, यानी कि उनसे बैत थे हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब। तो उनके वो तो हमारे गांव के जड़ में ही है जलालाबाद, तो उनके मदरसे की भी तो बड़ी चर्चा थी। हो सकता है तालीम शुरू की वहाँ से हासिल की हो। जलालाबाद वाला भी हाँ, और जलालाबाद वाले भी बड़ा मदरसा था भाई उनका, हजरत जी का। और भाई इन्हें ये जा कर थे कय्यूम का वहीं पढ़े, और भाई फिर इन्होंने भाई डॉक्टरी पढ़ी, फिर भाई इन्होंने डॉक्टरी पढ़ के फिर कुछ भाई और भी पढ़ा, और फिर ये हाफिज नहीं थे, फिर इन्होंने हाफजा करा घर ही। किन्होंने? कय्यूम खान। कय्यूम खान है। हाँ। और मौलाना मसीहुल्लाह वो मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के बारे में मैंने ये सुना है कि वो उन्होंने 27 दिन में 1 महीने में हिफ्ज कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं बता मैं बड़े आपके जो वालिद साहब थे वो बताया करते थे। बता रहा था ना, हमारे बाप भी मम्मू भी एमन अम्मू नमाजी थे पक्के, भाई हमारे अब्बा और मैं बता रहा था कि 1 महीने में हिफज कर लिया था उन्होंने। और भाई बहुत अच्छे मौलाना थे। मतलब 1 महीने में कैसे कर लिया था? रमजान के ही महीने में या वैसे? मैंने तो ये सुना है कि रमजान के महीने में वो ऐसे ही 1 पारा रोज याद करते थे, और 1 पारा रोज याद करके वो इसी तरह जो है तरावी में ऐसे ही पढ़ दिया। इंतकाल हो गया हाँ, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का तो 2.5-3 साल पहले इंतकाल हो गया था। अच्छा, आज क्या तारीख है जी? आज 12 अक्टूबर 2020 है आज। तो 12 अक्टूबर 2020 है, तकरीबन उनका 2017 या 18 में इंतकाल हुआ था जब भी मेरे पास खबर आई थी। और मैंने कोशिश भी करी, मैंने सोचा कि जी हमारे गांव के इतने बड़े मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, और जो है मुहक्किक हैं, यहाँ के तक के बहुत बड़े फ़कीह और बहुत बड़े मुहद्दिस थे पाकिस्तान के, सब जानते मानते हैं उन्हें। मैंने सोचा था कि उनके बारे में कुछ मैं जाके मालूमात इकट्ठी करूँ, उनके घर के बारे में, उनका घर दिखाऊँ वहाँ के लोगों को, क्योंकि और लेकिन ये बात मुझे जब याद आई परसों जब उनके लड़के का इंतकाल हुआ, तब मेरे दिल में बड़ा वलवला सा उठा। मैंने कहा यार हमारे गांव के हैं और इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी हैं, और इनसे पहले भी बहुत सारी शख्सियतें गुजरी हैं, और माशाल्लाह सारे पाकिस्तान के उलमा पे एहसान है हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का। बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं उनके पाकिस्तान के अंदर, सबको तकरीबन इल्म हदीस पढ़ा है। जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस टाइम की पाकिस्तान की, मौलाना तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद, और एक मुफ्ती तकी उस्मानी जो सबसे बड़े, तकरीबन एशिया के सबसे बड़े जो है फ़कीह माने जाते हैं, और एक वो मौलाना मंजूर मैंगल साहब, बड़े मुहद्दिस हैं वो भी। ये सारे के सारे आपके गांव वाले के, उनके सलीमुल्लाह खान साहब के शागिर्द हैं सारे के सारे। मुफ्ती तारिक मसूद इतने माशाल्लाह मशहूर हो रहे हैं, उनके मसले लोगों को इतने समझ में आते हैं और इतनी समझदारी की बात करते हैं, मतलब आम फहम ज़बान में हमारी जैसी लैंग्वेज और ज़बान इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया। वो भी उनके शागिर्द हैं। बता रहे थे एक बयान में कि भाई हमने भी जो है हमें भी उनसे निस्बत हासिल है, शायद हदीस पढ़ी हो या कुछ और पढ़ा हो। और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मदरसा है जामिया फारूकिया कराची में, वहाँ के शेखुल हदीस थे। फिर उनके लड़के बने, परसों उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। बड़ा अफसोस हुआ जी, उन्होंने जो है खबीसों ने, किसी ने गोली मार के उनको शहीद किया गया। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को ऐसे ही 2-3 लड़के थे सलीमुल्लाह में, दो जन। हाँ, बाकी जब वहाँ से गए होंगे लुहारी से, जब तो वो बिल्कुल जवानी के आलम में होंगे, क्या पता आगे और भी हुए हों,
और हाँ जवानी थे बचपन से। बाद में बस मलगन बचपन में हमारे बाप बाबू ने देखा वे एक पैर से लंगड़े थे। सलीमुल्लाह खान साहब। हाँ। अच्छा उनके मैंने कहा भाई ये लंगड़े क्यों हैं? अकेले निके कहने वो दांतड़े में पैर लग गया था जो अच्छा। चलता रहा करे था। हाँ, जब छोटे छोटे होंगे जब बहुत दंगे थे। इनका कभी जाना हो हमारा इंशाल्लाह लोहारी जाएंगे और लोहारी जाके उनके घर की सारी वीडियो वगैरह बनाएंगे और तब बताएंगे जो है पाकिस्तान वालों को कि भाई उनसे पहले मकान हो इनामुल्लाह मुंशी का जो मकान है अब वो उन्हीं का। हजरत मौलाना का। अच्छा हाँ भाई उसी में रहे थे। ये था तो यहाँ का याह्या खां का। हाँ ये भी मौलाना थे, दाढ़ी मूछ रखे थे। अच्छा अच्छा और थे मौल भी। अच्छा मौलवी पढ़े भी थे उन्होंने, हमने देखे उन्हें। याह्या खां। हाँ यहाँ। अच्छा और भाई उनके बच्चे रहे थे बाहर ग्वालियर के अंदर, कहाँ रहे थे बाहर। तो वे आज आकर जब देखे हमने उन्होंने के बाद दाढ़ी मूछ रखते नहीं। जब इन्होंने घर बेचा था, जब हमने कहा उनको कईयों भागो, मैंने कहा भाई यो इधर इधर का हिस्सा दे दो 10,000 ले लो। कहने लगा भाई ये नहीं कहा है और हमारा तो है नहीं है, ये तो है दूसरे का और भाई इसी में बिकेगा। अच्छा तो इनका मकान जो था वो जहाँ ये रहमतुल्लाह मोड़ रहे थे ना, इनके पिछली तरफ ही नन्हे खां का यो मकान था। अच्छा जिसमें काकड़ रहे यो था इनका नन्हे खां का मकान। नन्हे खां का। हाँ और जब ये दुकान पर आ गए थे ना इनके अब्बा कईयूम खां के और सलीमुल्लाह खां के। इनके वालिद साहब दुकान किसकी दुकान में रहे थे? दुकान थी उनकी, उसकी अत्तार बना की। अत्तार बने यानी कि पंसारी की। हाँ पंसारी की दवाइयाँ दिया करते थे। हाँ नुस्खे बंदा करना था, नुस्खे बनाए थे। अच्छा और वह फिर जब बुढ़ापा हो गया था उनका तो फिर भाई कईयूम खां बैठने लगे थे। भाई ये मोटा वो क्या जहूर मोटा वो रहा इनके, हाफिज अल्लाह सूफी अल्लाह रखा जो भी रहा। ये जिन्ने मदरसा बनाया अल्लाह रखे ने वो? नहीं ये सूफी इसका भाई सफेद का बाबा। अल्लाह रखा बहुत नाम रखे थे माशाल्लाह, तुम्हारा नाम भी अल्लाह रखा। हाँ, अल्लाह रखा एक अल्लाह रखेगा तुमने तज़किरा कर दिया, और एक अल्लाह रखे ने वो जो दरबार वाली मस्जिद है उसके बराबर में मदरसा बना रखा। हाँ वो लिखा। बस जी मुझे तो बड़ा मलाल था हुआ, मैंने कहा हमारे गांव की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है कि सारा पाकिस्तान नाम लिखा नहीं। हाँ नाम तलक नहीं बताया किताब में, बस यूँ लिखा हुआ है। जब हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के बारे में ये बात होती है कि जी वो कहाँ के थे, तो यूँ कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के किसी गांव के थे। किसी गांव के थे। मौलाना सलीमुल्लाह खान ने भी नहीं बताया, पता ही नहीं मुझे तो। हयात थे। हाँ जब वो हयात थे उन्होंने भी नहीं बताया। पता नहीं कभी उन्होंने बिचारों ने तज़किरा कराया नहीं। जल्लाबाद के हम रहने वाले हैं। जल्लाबाद के क्यों? लोहारी के। हाँ बिल्कुल हमारे लोहारी वो तो एक ही थे। तुम्हारा घर तो वो कुएं वाला जिसमें कुआं था, तुम उन्हीं के बराबर में तो था बिल्कुल ही। तो ना वो उन्होंने तो बेचा था कईयूम खां ने। कईयूम खां ने बेचा था वो भी। वो उनके था नहीं कोई भिक्का खां जो थे उनके औलाद थी, बकरियां पाला कर थे। जब बुढ़ापे में उन्होंने खाना खोना दिया उन्हें, और कोई था ही नहीं उनके। बस फिर वो नहीं इन्होंने उनका नाम कर दिया था जो उसका हिस्सा था। भाई एक इधर था नन्हे खां, वो ऊँट पाला करा था, उसका हिस्सा निकला था। वो उनके कुनबे का होगा, वो उनसे कागज करवा रखा था उन्होंने, वो भी दे दिया था हमें कागज। अच्छा वो कागज भी दे दिया तुम उनके घर का? हाँ मैं तो बचपन में बस जब 8-10 महीने का होऊंगा या नहीं, उन्होंने ऐसा करा था। कभी कोई हिस्सेदार उठकर भाई कहने लगा हमारा हिस्सा निकले लाओ आया में, तो वो जो नन्हे खां थे ऊँट पाल थे उनका कुछ हिस्सा निकले था उनका कागज करवा रखा था, पैसे दे दिए उन्होंने कईयूम खां ने। वो 11,500 का हमने दिया था फिर मकान। भाई दोस्तों बुजुर्गों, मेरा तो कहना यह है कि हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब बड़ी हस्ती थी। उनको हमारे इन्होंने वालेकुम सलाम दादा ने देखा है बहुत करीब से। अगर कोई बात उनके बारे में पूछनी हो तो मैं वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, रब्ता भी कर सकते हैं। चाहते हैं हम भी हमारे गांव का नाम भी किसी किताब में भाई लिखा जाए कि हमारे गांव में ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं। उनके बचपन के बलगन बात अब
क्या बतला दें हमारे दादा बताते हुए दादा अमीर अहमद, नहीं ये क्या इब्राहिम भाई बतला देता उनका हाँ। उनका इंतकाल हो गया। मैं भी उधर गई उसी गली के थे ना। हाँ नहीं भाई के खास है जड़ में बिल्कुल। भाई उनको सब पता थे जब उनका बचपन था उन्होंने देखा अजी हम ये तो कहाँ पढ़े कहाँ उन्होंने तालीम हासिल करी हम्म, ये सब जाने थे हम तो हमें इतनी हौसले हम थी तो वाले छोटे थे जब हमें जो है जब इब्राहिम दादा का इंतकाल हुआ, वरना अगर अल्लाह ने चाहा होते हुए तो हम सारी बातें पूछते उनसे। पुराने लोग पुराने बुजुर्गान दीन ऐसे ही हमारे बीच में से एक एक करके रुखसत हो रहे हैं, अब कोई और ऐसा- किसी की कोई पुरानी बात। परसों मैं पुप्पी के पास बैठा तो पुप्पी बता रही थी मुझे, पूरा दिन हो गया जी शरावत भाई मुझे वहाँ बैठे बैठे पुप्पी की बातें सुनते सुनते, कय्यूम खां की ले, हकीम जी की ले, और सारे जितने पठान थे हमारे लोहारी के, और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के बारे में, कय्यूम खां के बारे में। हालांकि पुप्पी को इतना पसंद था, फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह रखे दादा के पास जाइए बताऊंगे तुझे सारी। मैंने कहा बिल्कुल, इन्हें जो है किसी वीडियो में वगैरह में कैद करके। तो उनके बारे में बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगा दे, और जो है उनकी बरकत से अल्लाह ताला हमें भी जो है हिदायत पे रखे और ईमान पे खात्मा करे। बस जो भी बात पूछनी हो भाई हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई बात होगी आइंदा कभी तफ्तीश करने की या बताने की, अल्लाह ताला बड़े बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे तादीर कायम रखे जब तक हमारे बीच में हमारे दादा हैं। अगर कोई बात पुरानी इनके याद होगी या कोई आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।